Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the reading from 15th to 30th of October for the sign of Aquarius. And please remember, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Don't try to fit in. Please check your sun, moon, and rising, and always remember that roles can be reversed. That means this could be your energy or vice versa, and the energies can always shift. That is, they can always change with time, because time is fluid. That's why they can always change. So let's start with the Aquarius. My love team, what is going on with Aquarians? What are the current feelings of Aquarius, my love team? Please tell me. What are the current feelings of Aquarius? Okay, Aquarius, we have got the King of Swords, we have got the Strength, and we have got the Knight of Swords. Lot of swords. So Aquarius, you are very cold, detached, logical, एंड आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है विद स्ट्रेंथ. आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है और आप you want to maybe communicate with someone or somebody is coming towards you. Knight of Swords. Now ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आई फील यू आर क्वीन, यू आर किंग ऑफ सॉर्ड्स. जेंडर डजेंट मैटर, चाहे आपको कोई भी जेंडर हो, बट यू आर शोइंग द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स. और आपको ये यू हैव टू सी दैट दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स ही इज़ लुकिंग स्ट्रेट, मगर ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ये इसकी ओर पॉइंट करता हुआ आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि somebody is approaching you and they are approaching very quick and fast. They want to talk, they want to communicate. और वो कोई पर्टिकुलर एजेंडा से आपकी तरफ आ रहे हैं. उनके पास कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिस पर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में स्ट्रेंथ, यानी यू आर इन योर पावर, और आपको पता है कि आपको ये कैसे फेस करना है, बिकॉज यू नो हाउ टू फेस दिस ऑनस्लॉट. ये पर्सन जो आपकी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप जानते हैं कि आपको कैसे फेस करना है. सो दिस इज़ व्हाट द करंट फीलिंग, दैट यू आर इन योर पावर. आपने अपने आप को विथहोल्ड कर रखा है. आप इस पर्सन को इग्नोर करना चाहते हैं, बट समबडी डज नॉट वांट टू बी इग्नोर्ड. वो इग्नोर होना नहीं चाहते हैं. So King of Pentacles in the reverse, you've got the Empress in the reverse, you've got the Seven of Swords. So yeah, somebody is like you have blocked someone and you don't want to deal with them, you don't want to indulge with them, because there are a lot of mental games and manipulations with this person here. तो यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि आप आप इस पर्सन को इग्नोर करना चाहते हैं, मगर कोई आपकी तरफ वो चाहता है कि आप उसको इग्नोर ना करें, आप उसको सुने, बट यू आर इन योर पावर. आपको पता है कि दिस स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, ये कैसे इस लाइन को टेम कर रही है, कैसे इसने इस लाइन को रोक रखा है. उसी तरह से आप इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर और कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस से काम ले रहे हैं. आप बिल्कुल भी झुकने या डरने वाले नहीं हैं. Now let's see what does your person feel. Interesting. This is something very interesting up till now. So let's see what does the person of Aquarius feel. What does the person of Aquarius feel? What are their feelings? My love team, please tell me what are the feelings of the person of Aquarius, my love team. Okay, you have got the High Priestess in the reverse, you have got the Knight of Pentacles upright, and we have got the Five of Swords. So I think आपके पर्सन जो है वो उनके साथ उनको ये पता लग चुका है कि, या उनके सामने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन या इंट्यूटिवली उन्हें मालूम पड़ा है, उनके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट्स आए हैं जो वो पहचान चुके हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. देयर इज़ लॉट ऑफ फाइटिंग, देयर इज़ लॉट ऑफ ईगो टसल, माइंड गेम्स, जेलसी ऑल्सो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जेलस. तो ये आपकी ओर बहुत ही स्लोली आना चाहते हैं, एंड सो मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, बट
यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कोई और पर्सन है, दिस कुड बी समवन एल्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। दिस ये जो पर्सन है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न शो कर रहा है। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, और ये पूरी तैयारी के साथ आपको अप्रोच करेगा, बट वेरी स्लोली। और उनको पता है कि उनको बहुत स्लोली आपके साथ डील करना पड़ेगा, बट दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल। जैसे कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो ये बहुत स्लोली आपकी ओर आ रहे हैं, या दे वॉन्ट फॉरगिवनेस, मे बी दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपके पास लव ऑफर लेके आना चाहते हैं, बट उनको काफ़ी डर है कि इसमें बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो या आप लोगों के डिफरेंस, आप लोगों के व्यूज़ नहीं मिलते हैं एक दूसरे से। आप लोग कॉमन 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग, सॉरी दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग एक सेम पेज पे नहीं हैं, आप लोगों के व्यूज़ एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, और आप लोगों के बीच डिफरेंट, आप लोग एक लव सिचुएशन को भी डिफरेंट तरीके से देखते हैं। आपके लिए लव का मीनिंग कुछ और हो सकता है, आपके पर्सन के लिए लव का मीनिंग कुछ और हो सकता है, बट दे आर टेकिंग द टाइम, दिस विल टेक टाइम, बट दे आर कमिंग वेरी स्लोली टुवर्ड्स यू। This is what they feel, that they should approach you, but they should approach you slowly, and they want to ask for forgiveness. Page of Cups, yeah, they want forgiveness from you. Now let's see what is the outcome. What is the outcome of this relationship for the next 15 days? What is the outcome? What is the outcome of this relationship for the next 15 days? From 15th to 31st of October. What is the outcome of this relationship, my love team? Okay. So the outcome is the Queen of Pentacles in the reverse, the 8 of Cups in the reverse, and the 8 of Wands. 2, 8. There are 2 8s here, that is 16, that is 3. Sorry, 16 plus 7 नंबर। ओके, तो इसका आउटकम तो यही दिख रहा है एक्वेरियस कि somebody wants to come back, somebody will try to come back, but there is lack of forward movement। मतलब वो पर्सन आपके पास वापस आपसे बात करने आना तो चाहता है, मगर दिस कुड बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मे नॉट बी, लेकिन देयर इज़ अ डेडलॉक, देयर इज़ अ स्टैलमेट, यानी कि वो आना तो चाहता है मगर वो सिचुएशन ये आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वे आना भी चाहते हैं तो भी दे डोंट नो हाउ टू कम बैक इन योर लाइफ, और ये सिचुएशन स्टेलमेट में ही बनी रहेगी। दिस इज़ द आउटकम। ये सिचुएशन कहीं पे भी आगे मूव ऑन नहीं करती दिख रही है अगले 15 दिनों में। दिस इज़ व्हाट आई फील। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एक्वेरियस। Okay, we have got the Ace of Cups in the reverse, the 6 of Wands upright, and the Ace of Pentacles in the reverse. The 2 aces are in the reverse, Pentacles and the Cups. Okay, तो आपके लिए एडवाइस एक्वेरियस यही है कि आप अपनी विक्ट्री, सक्सेस पे फोकस करें। बॉटम ऑफ द डेक या द सन, तो आपको ये पता है होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप क्या चाहते हैं, एंड डोंट बी टू स्टबर्न। और आपको आप ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में लव चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में लक चाहते हैं, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझने के, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम दूसरों का साथ दें और लें। वी कैनॉट हैव विक्ट्री ऑन आवर ओन, वी कैनॉट बी सक्सेसफुल ऑन आवर ओन, वी नीड पीपल टू सपोर्ट अस, वी नीड सोशल सर्कल। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न है या बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउडी है, और आपको बहुत घमंड है इस बात का कि यू आर वेरी सक्सेसफुल, विक्टोरियस, सो मे नॉट बी द केस बिकॉज द 2 एसेस आर इन द रिवर्स। तो अगर आपकी लाइफ में अगर आप लव
नहीं चाहते हैं, अगर आप न्यू बिगनिंग नहीं चाहते हैं, आपकी लाइफ में लक और लव अगर आप चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने इस घमंड और गुरूर से बाहर निकलना पड़ेगा। बिकॉज यू फील यू आर द सन, आपको लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, एंड यू फील या प्लीज़ लुक एट मी, आई एम सो सक्सेसफुल, आई एम सो सक्सेसफुल। बट आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं और आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइड में हैं तो उसको कम कर दें, बिकॉज वी नीड पीपल इन आवर लाइफ्स। So this is what it is telling me. So I hope you got something out of it, Aquarius, and please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time. Till then, bye bye.